today we are going to discuss few of the practical things. So did I discuss about this qualitative and quantitative test? I think as I remember, I have discussed only one practical, that is about preparation of standard solute. Am I right? Yes, ma'am. Okay. So today we are going to discuss about this one qualitative and quantitative test. So first you tell me what is the difference between this qualitative and quantitative test? Ma'am, you have discussed qualitative test. Yes, ma'am. Okay, qualitative is already discussed. Yes, ma'am. So water test I have discussed carbohydrate and protein, I guess. Anything else? Iodine test, anhydrine test, and about spectrophotometer. Okay, okay. So have you written about this test in your practical notebook? Yes, ma'am. Oh, good, very good. So today then we have to say something else then. Let me check what I have. Please give. Sorry? Ma'am, it's not written. Okay, not written. Okay, I will share PPT and in that way only you will have to write in your practical notebooks. Okay. Okay, ma'am. Just a minute. Okay, so today we are going to discuss about quantitative test, like that is the estimation of concentration of sugars by DNS method. Okay. So what is this quantitative test? What is the difference between qualitative and quantitative test? Qualitative on the identification, quantitative knowing about the quantity. Okay, very good. Yes, so qualitative we are just saying the quality of the product, whether it is rich in carbohydrate, protein, or anything like that. But if you have to say about the exact quantity, how much carbohydrate is there, how much protein is there, so that time we go for quantitative test. Okay. So today we are going to discuss about quantitative test of carbohydrate. Basically, that is just the principle of reducing sugar. Because how much sugars are there in that total sugar, reduced sugars and non-reduced sugar. So just a minute, I'm sharing my slides with you. Okay. So this is based on principle of reducing sugar
said that they are what happens that that is not carbon group reduces sugar oxides to carboxylic acid, and then it gets reduced to NH2 group of the reagent the dinitrile acid. This is a reagent we are used for collaboration or that is we are going to modify. And due to reduction of this reagent, it will get converted into NH2 and it will be red brown color. Starting this reagent will be yellow color. Add purchase and reagent yellow color होता है, but after the reaction is getting converted into red brown color, and this one we are going to measure as a photometer, and based on its concentration we can say that how much carbohydrate is there and that sort of stuff. So what is the principle of spectrophotometer? So याद है क्या है spectrophotometer? The concentration, there is a concentration of a particular solute, the light action also. Good. So absorption depends only on concentration and reactions also. Optical density. Optical density is the absorption, that is the meaning in terms of optical density. But I am speaking optical density depends only on the concentration or reactions also. Thickness of absorption. Yes. So what is the thickness of absorbing material? Parallel length. Parallel. So how much it is? For a unit, it's 1 centimeter. Standard length. Yes, very good. So actually absorbance depends on concentration as well as path length or this sector. Then the cubic we can say that not the specific path length. But since the standard lengths are always 1 centimeter, we are ignoring that part. So based on the concentration of the density goes ahead. Depending on that will be the concentration of this product in the air. As well as that the concentration of that red color absorbance that color only we can calculate what is the actual what we say that carbohydrate is. Okay. So this one already I have discussed with that some disaccharides are reducing and some are not reducing. What is the reason behind this one? Why some disaccharides are reducing and some are not reducing? That is why seeing this picture, do you remember something? All disaccharides are reducing, is that correct? No, ma'am. Except fructose. Okay, why so this is not yes, sir. Why we are saying this is other disaccharides are also not having carbon group. All disaccharides are not reducing, so some are reducing, some are not reducing. Why some are not reducing? Because as I explained earlier, whenever it is in solution form, it has tendency to convert it into the open chain. Think of it as cyclic compound, but it has tendency to get converted into open chain. The features for solution and evaporation they are interconverted whenever it is a solution. So whenever it is free to get converted into open chain, so that important. Because the carbon group it is free, so then it gets easily converted into open chain. And then since it has free carbon group, can be used as an oxidizing agent. But जब आपके carbon group होता है, that is only involved in the bond formation. So उसमें क्या होगा? When it will try to get converted into open chain, it can converted into open chain. As disaccharides today, they are non-reduced sugar. इसका और क्या example है?
other than sucrose, any other item? Yes, so this is like molecule. one glycosylate, ma'am. Yes, because of one glycosidic it is not able to convert. One क्या मतलब है कि उसका दोनों एटम का कार्बन जो होता है that is important for bond formation. और उसकी वजह से कार्बोनिल फील्ड can get converted into that form. Okay. तो ये बनाने के लिए क्या करते हैं? First we have to prepare standard process solution. जब आप लोग आओगे प्रैक्टिकल करेंगे तो these reagents should be prepared. First is the standard process solution. That is cheap per ml. And क्या हुआ ये इतना concentration per solution in terms of ppm. अगर ppm की बात करें कि कितना ppm solution होगा? ppm कैसे बनाते हैं याद है? How do you define ppm solution? Minus 15. Yes, part of the फिर 15 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? One ppm solution. Suppose I say that I have to prepare 1 ppm glucose solution. तो कितना ग्राम ग्लूकोज आप टेम्परेचर वाटर में डिसॉल्व करोगे? 1 milligram 1 liter. 1 milligram liter solution. Good. So ppm को क्या डिफाइन करते हैं? ppm is equal to mg per liter of the solution. तो यहाँ पे क्या है? mg per ml of the solution. कितना ppm हो जाएगा? 1000 ppm. Yes. So we have to prepare a solution that is 1000 ppm. उसके लिए क्या करते हैं? 100 milligram लेके 100 ml में डिसॉल्व करते हैं या फिर 200 ml लेके 200 ml में डिसॉल्व करते हैं. Important to understand the concentration of standard solution. Okay. Concentration of standard solution जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि we are talking about the quantities. We have to quantify that. Suppose हमें अभी पता है कि हमारा जो standard solution कितना concentration है. But what we are doing, we have to compare with the reference. आप लोगों को अगर ब्लड करवाना होगा तो देखा होगा हीमोग्लोबिन लेस देन 10% दिया रहता है और साइड में रेफरेंस दिया रहता है 10 to 15% इज द नॉर्मल रेंज. राइट? कभी ध्यान दिया इस चीज पे? कोई भी टेस्ट करते हो तो आप देखा होगा दो कॉलम है. एक योर वैल्यूज की हाउ मच यू आर हैविंग दैट इज हीमोग्लोबिन और योर लिम्फोसाइट एनीथिंग. और उसके बाद कलर में क्या होता है? Reference होता है. That reference is the normal range. Suppose it is 10 to 12, so that is for hemoglobin. अगर 10 के बीच में अगर आपका है तो then you are normal person. अगर 10 से ज़्यादा है तो 10 से बिलो है तो you are anemic people. Similarly, right density से ही रहता है कि इतना So what we are doing, we are comparing that the standard. स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं. यहाँ पे क्या है कि सपोज यू आर गिवन अ सैंपल. फॉर एग्जांपल यू हैव गिवन लाइक आपने भी है सपोज आपने क्वालिफिकेशन किया है फिर यू आर गिवन अ सैंपल. सैंपल में आस्क मी नाउ टेल मी हाउ मच कार्बोहाइड्रेट इन दैट सैंपल. तो उसके लिए क्या करते हैं? हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं. उस स्टैंडर्ड में हम कंपेयर करना होता है. तो यहाँ पे हमने सपोज का स्टैंडर्ड बनाया. कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज का स्टैंडर्ड बनाते हैं. तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक आप ग्लूकोज का आपने बनाया और डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज का लेते हैं. जैसे 0.2 ml ग्लूकोज या 0.6 0.8 ये 5 डिफरेंट टेस्ट में लेंगे. तो 0.2 ml कहने का मतलब है कि इसमें कितना कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज होगा. आपने mg पर ml बनाया मतलब 1 ml में 1 ml में 1 mg है तो 0.2 ml में कितना mg आपका होगा? आपने जो स्टैंडर्ड बनाया है दैट इज 1 मिलीग्राम पर ml. ठीक है, क्योंकि आपने 100 मिलीग्राम को 100 ml में किया है. तो सपोज आपने उसमें से 0.2 मिलीग्राम ग्लूकोज लेके एक टेस्ट ट्यूब में डाला तो उसमें कितना ग्लूकोज है आपका?
थोड़ा दिमाग लगाइए, समझ में आएगा। जो आपने स्टैंडर्ड बनाया है दैट इज mg पर ml, मतलब 1 ml अगर आप लेते हो तो उसमें 1 mg होगा, तो 0.2 ml लोगे तो उसमें कितना mg होगा। सिंपल कैलकुलेशन, उसमें 0.2 mg होगा। नहीं समझ में आ रहा आप लोग को, या बोलना नहीं चाह रहे हो? एक बार वापस बता दीजिए। अभी हमने जो बनाया 1000 ppm सॉल्यूशन बनाया, उसके लिए मैंने आपको क्या बोला कि द प्रिपरेशन ऑफ रिएजेंट, आई टोल्ड यू यू हैव टू प्रिपेयर mg पर ml, मतलब 1 mg में लेकर 1 ml में डिजॉल्व। तो इसके लिए हमने क्या किया था, 100 mg को लेकर 100 ml में डिजॉल्व किया था। ओके, तो इसका स्ट्रेंथ क्या mg पर ml हो गया, राइट। 100 ml में 100 mg हमने डिजॉल्व किया है। तो अगर आपने उस स्टॉक सॉल्यूशन से 0.2 ml लिया है तो उसमें ग्लूकोज कितना होना चाहिए आपका, 0.2। 0.2 होना चाहिए, राइट। सिमिलरली अगर आपने उसमें 0.4 ml लिया है तो उसमें ग्लूकोज कितना हो जाएगा, 0.4 होगा। 0.6 लिया है तो ग्लूकोज उसमें 0.6 होगा। तो ये हमारा जो स्टैंडर्ड है, तो ये हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 करके ऐसे टेस्ट ट्यूब हम अरेंज कर लेते हैं आपके टेस्ट ट्यूब स्टैंडर्ड। इसको आपको नेमिंग करना है 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1। तो ये आप बना लोगे। उसके बाद क्या होगा कि उसमें हमें डिस्टिल वाटर ऐड करना है, फिर डीएनएस रिएजेंट डालना है, उसको हीट करना है एंड देन डाइल्यूट करके इसका एब्जॉर्बेंस देखना है। तो इसका जो एब्जॉर्बेंस होगा, सपोज यू आर गेटिंग एब्जॉर्बेंस लाइक 0.4, in this case in this you will get 0.79, फिर ये हो जाएगा 0.998, 1.6, ये आपका 1.89। तो आप जो ओडी ऑप्टिकल डेंसिटी आ रही है आपकी कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। 0.2 के लिए आपको कितना मिल रहा है, 0.4 मिल रहा है, फिर 0.4 के लिए पॉइंट ये समथिंग ऐसा आ रहा है। तो इसको लेकर आपको क्या करना है कि आप एक ग्राफ, इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं जहाँ पे हमने कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस पे शो किया, वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस शो किया है। तो इसके लिए क्या था, 0.2 के लिए आपका जो वैल्यू था यहाँ पे समथिंग 4 समथिंग, इसमें हमने देखा 0.8 के लिए वैल्यू है जो आपका 0.8 समथिंग आ रहा है। तो ऐसे करके आप एक ग्राफ बनाओगे स्ट्रेट लाइन, एंड देन यू नो whenever there is a straight line you will get equation like this, y equal to mx plus c। ये इक्वेशन मिलता है, तो इस इक्वेशन से क्या होगा, यू कैन कन्वर्ट इट x इक्वल टू वाई माइनस इतना डिवाइडेड बाय, इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। तो सपोज यू आर नोइंग द x y वैल्यू, देन यू कैन इजिली कैलकुलेट द x वैल्यू, राइट। तो y वैल्यू आपको एब्जॉर्बेंस पता रहेगा। मान लो सपोज y वैल्यू इसमें कुछ भी है, मैंने 1 दे दिया यहाँ पे y वैल्यू, तो आप इसका करस्पॉन्डिंग x वैल्यू यहाँ पे इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर आपने जो मैथ्स में कभी पढ़ा होगा, इफ यू आर डूइंग एनी प्लॉट लाइक दिस एंड योर वैल्यू y एक्सिस का वैल्यू समथिंग यहाँ होगा, तो इससे लेकर वी हैव टू ड्रॉ वन परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन एंड देन फ्रॉम दिस पॉइंट यू हैव टू ड्रॉ वन परपेंडिकुलर x एक्सिस। So wherever it is cutting on the x-axis, that is the value of your x-axis। तो सेम चीज आप मैनुअली भी कर सकते हो, और अगर आप ये इक्वेशन कैलकुलेट कर पाते हो तो देन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट। तो सेम चीज यहाँ पे क्या होता है कि ये तो आपका ग्लूकोज हो गया। उसके बाद आपने 0.5 ml सैंपल लिया था, उसमें भी आपने सेम रिएजेंट डाला एंड उसका रीडिंग चेक कर रहे हो। तो सपोज इसकी रीडिंग आ रही है 0.76, दैट मीन्स यू आर गेटिंग सम y वैल्यू। तो बेस्ड ऑन दिस y वैल्यू यू कैन कैलकुलेट योर x वैल्यू। तो ये इसका मेथड होता है क्वांटिफिकेशन मेथड। तो ये समझ में आया, ये नहीं समझ में आया? अब बाकी ये सारी प्रोसीजर है इसकी कि आपको पहले तो आप रिएजेंट बनाओगे, सारे रिएजेंट बनाने के बाद क्या करना है, एक प्लांट सैंपल लोगे, उसको हमें हॉट इथेनॉल के साथ उसको ये करना है, डाइजेस्ट करना है, क्रश करना है। आफ्टर क्रशिंग दैट वन वी हैव टू, ये आपको इसे क्या कहते हैं पता है आपको, जिसमें क्रशिंग करते हैं, Mortar and pestle. दिस इज पेस्टल एंड मोर्टर। तो इसमें रख के हॉट इथेनॉल के साथ आपको इसको क्रशिंग करना है। क्रशिंग करने के बाद क्या होगा, वॉट एवर मटेरियल इज देयर अराउंड 10 ml इथेनॉल
डायरेक्ट आपको ये जो होता है इवेपोरेटिंग फ्लास्क में डाल के इसको इस तरह का वाटर बाथ होता है उस पर डाल के इसको गर्म करना है। एंड जब इसको आप गर्म करोगे तो क्या होगा कि सारे इथेनॉल आपके उड़ जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएगा उसके साथ, और केवल रेसिड्यू बच जाएगा। तो दैट रेसिड्यू विल बी हैविंग योर कार्बोहाइड्रेट। तो उस रेसिड्यू को क्या करना है, 1 ml वाटर के साथ डिजोल्व करके इस तरह के इपेंड्रॉप ट्यूब में हम रख लेते हैं। एंड देन आफ्टर दैट दिस इपेंड्रॉप ट्यूब इज सेंट्रीफ्यूज, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो इसका सुपर नेटेंट होता है दैट वी हैव टू टेक इन दिस टेस्ट ट्यूब, एंड देन you will add all the reagent, and based on the concentration of your glucose you will get color like this। अगर कम concentration है तो येलो होगा, ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, और ये यहाँ से ना ब्राउनिश रेड कलर आएगा। and this reading we have to take in the spectrophotometer। this is the whole procedure, and once you are taking the reading in spectrophotometer you will get the some OD value, and that OD value we have to put in this table, and based on that you will get one standard curve, and based on this standard curve you can get the value of X, and that is the final concentration of sugar। so this is the method for quantification of carbohydrate। तो इसमें किसी को डाउट है तो बताओ फिर। और जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फिर हमें ये फॉर्मूला यूज करके उसका कैलकुलेशन करना है। देन इट विल गिव द गिवन सैंपल कंटेन दिस मिलीग्राम ऑफ रिड्यूस्ड शुगर पर ग्राम ऑफ द सैंपल। उसी तरह सेम चीज है जो हमारा दैट इज फॉर रिड्यूसिंग शुगर। टोटल शुगर के लिए भी हम करते हैं, बस इसमें रिएजेंट हमारे चेंज हो जाएंगे डिफरेंट अलग रिएजेंट के थ्रू, और सेम इसमें प्रोसीजर बाकी सेम ही करना है, और इससे लेंगे फाइनली इसका कैलकुलेशन होगा। तो वंस यू विल गेट द टोटल शुगर माइनस रिड्यूसिंग शुगर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एक मेथड ये था। दूसरा मेथड है उसको हम लोग कहते हैं नेल्सन-सिमोगी मेथड। तो इसमें भी प्रिंसिपल सेम है बट रिएजेंट डिफरेंट यूज होता है। वहाँ पे हम डीएनएस रिएजेंट यूज कर रहे थे, यहाँ पे नेल्सन-सिमोगी रिएजेंट यूज करते हैं, और बाकी सारी मतलब चीज़ें सेम ही होगी। तो ये था आपका एस्टिमेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, और यू बेटर टू से एस्टिमेशन ऑफ टोटल शुगर। इसमें किसी को डाउट है? मैम एक बार ग्राफ एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, तो ग्राफ को समझने के लिए पहले ये पार्ट समझना जरूरी है कि ग्लूकोज का व्हाई वी आर टेकिंग दिस स्टैंडर्ड। सपोज यू आर डूइंग कार्बोहाइड्रेट देन यू आर टेकिंग ग्लूकोज एज ए स्टैंडर्ड, बट अगर आपको प्रोटीन एस्टिमेशन करना होगा तो उस समय क्या होता है कि हम प्योर प्रोटीन जैसे कि एल्बुमिन दैट इज द सिंपलेस्ट एंड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एल्बुमिन, तो उसको हम स्टैंडर्ड की तरह यूज करते हैं। अगर आपको फैट करना है और फैट दैट वी आर यूजिंग। So depending on the quantification आपको quantify क्या करना है, we are using the standard। तो यहाँ पे हमने क्या किया, we have taken different concentration of glucose 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। तो these are the known concentration। आपको इसका concentration पता है कि how much you are taking, and based on that concentration you are getting some absorbance, right? अगर मान लो आप 0.2 यहाँ पे कर रहे हो तो आपका absorbance 0.4 आ रहा है, you are increasing the concentration to double, 0.2 से 0.4 कर रहे हो तो एब्जॉर्बेंस भी ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। सिमिलरली 0.2 से 0.6 कर रहे हो दैट मीन्स यू आर डूइंग द 3 टाइम्स। तो एब्जॉर्बेंस है इट इज नॉट एग्जैक्टली 3 टाइम्स बट इट इज इंक्रीजिंग। सिमिलरली व्हाट यू आर डूइंग 0.2 टू 0.8 मतलब 4 टाइम्स कर रहे हो तो कंसंट्रेशन यहाँ पे एब्जॉर्बेंस इज ऑल्सो 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है, और ये 5 टाइम्स कर रहे हो ये भी यहाँ पे एब्जॉर्बेंस 5 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या है आपको पता है, दिस इज योर नोन कंसंट्रेशन एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर गेटिंग सम एब्जॉर्बेंस, बट in case of your sample you are not knowing the concentration, that's why I have kept this one blank. This is your blank value, you don't know how much concentration is there, but since you are adding all the reagent you get some absorbance value here। तो इसको हमें फिर क्या करना है, इसको हम एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। तो एक्स एक्सिस वी आर प्लॉटिंग द कंसंट्रेशन एंड वाई एक्सिस एब्जॉर्बेंस। तो जब आप एक्स एक्सिस पे ये कर रहे हो तो दीज आर फॉर डिफरेंट वैल्यू दिस ग्राफ इज देयर। तो आपने देखा कि आप 0.2 के लिए यू आर गेटिंग समवेयर 0.4 है, 0.4 के लिए यू आर गेटिंग समवेयर 0.8 लाइक दिस। तो सिमिलरली यू विल गेट दिस टाइप ऑफ पॉइंट्स एंड देन यू हैव टू
that 0.5 will contain this much, so 10 how much it will be containing, and starting you have taken 0.1 gram of sample, so final 1 gram of sample how much it will contain. ये एक दो बार आप लोग खुद से प्रैक्टिकली करोगे तब बात समझ में आएगी, ऐसे हो सकता है थोड़ा समझने में दिक्कत हो। क्लियर है ये? ओके, आप लोग एक बार जाकर इसको पढ़ने की कोशिश करो घर पे खुद से, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम लोग फिर से इसको रिपीट करेंगे। आप लोग यहाँ पे आओगे तो अगर टाइम परमिट्स वी विल हैव दिस केमिकल्स, देन वी विल ट्राई टू डू दिस एक्सपेरिमेंट एट लैब, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग अपने प्रैक्टिकल में फर्स्ट प्रैक्टिकल जो हमने किया अबाउट द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दैट यू राइट, then second practical about the qualitative test, and this will be your third practical related to estimation of sugar quantitative test। तो ये पीपीटी में भेज देती हूँ, बाकी पीपीटी मैंने दिए नहीं शायद, तो वो सारे पीपीटी भी आपको दे देती हूँ, आप वो लोग अपने प्रैक्टिकल नोटबुक में लिख लेना। और जब हम आप लोग यहाँ पे आओगे तो क्वालिटेटिव टेस्ट वाला एक्सपेरिमेंट तो हम लोग ईजिली कर सकते हैं, उसको हम लोग करेंगे और ये टेस्ट देखते हैं कर पाते हैं या नहीं कर पाते, लेकिन एटलीस्ट ये ग्राफ हम बनाकर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे आप लोगों, ताकि ये समझ लो आप लोग, क्योंकि ये ग्राफ इट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ एवरीथिंग लाइक प्रोटीन, phenolic, anything you are doing quantitative test, you have to make graph like this only, and based on that only you can calculate your value, ठीक है। So this is only for today's class। तो क्लास को खत्म करते हैं फिर यहीं पे, हम लोगों को कोई डाउट नहीं है तो बोले yes no। Yes. Okay then, thank you very much।